اور سب تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ ہلیلویا۔ تو آئے ہم آج کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے جو کہ یوحنا 4 باب اس کی 46 آیت سے 54 آیت تک ہے۔ تو میں درخواست کروں گا بہن شادیہ ندیم سے، وہ آئے گی اور آج کے کلام کی تلاوت کرے گی جو کہ یوحنا 4 باب 46 آیت سے 54 آیت تک کیا۔ بس تو پھر کانا گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند میرا بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا کریں گے اس کلام کے لیے جو آج کی صبح خداوند جاری کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان دلوں سے کلام کرتا ہے جو اس کے کلام کو سننے کے لیے متلاشی ہوتے ہیں، اور جن کے دل اس طرح سے کلام سے ترستے ہیں جیسے کہ ہرنی پانی کے لیے ترستی ہے۔ ہاللویا۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے کلام کو مانگیں۔ اے میرے خدا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم اس وقت تیرے پاک مذبح کے سامنے ہیں، اور خداوند اپنے سخنے پاک کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں جاری کر دیں۔ خداوند تیری قدرت اور تیرے مسح کو چاہتے ہیں، اور خداوند میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ ہر ایک بات جو خداوند میرے لفظ سے جاری ہو وہ صرف اور صرف تیری تمجید کے لیے، تیرے تقریب کے لیے، تیرے جلال کے لیے ہو، اور خداوند تیرے کلیسیا کی ترقی کے لیے ہو۔ ابلیس شریر کے سارے منصوبوں کو جو تیرے لوگوں کے خلاف ہیں، جو اس خدمت اس منسٹری کے خلاف ہیں، یسوع کے نام میں نیز ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور خدا تیری قدرت اور تیرے جلال کو چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللویا۔ میں آج کے صبح کرائسٹ ہولینس چرچ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور جتنے لوگ شائن اسٹار ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، I would like to welcome you۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اس وقت ہم ڈیفینس ویو کے ایریا میں موجود ہیں جہاں پر ہم ہر اتوار کی صبح میں جمع ہوتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے جو کہ زندگی بخش کلام ہے، جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب ہم اس کلام کو سنیں گے تو خدا ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ ہاللویا۔ آج کے دن ہم نے خداوند یسوع مسیح کی انجیل یوحنا کی معرفت اس کا 4 باب اور اس کی 46 سے 52 آیات تک دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح پھر سے کنائے گلیل میں تشریف لائے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خداوند نے پانی کو میں بنایا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پانی کے نیچر کو خداوند نے میں کی صورت میں بدل دیا۔ یہ وہ خداوند ہے جس بھی جگہ پر جاتا تبدیلی رونما ہوتی، جس بھی مقام پر چلا جاتا، جس بھی شخص کا انکاؤنٹر اس کے ساتھ ہو جاتا، پہلے والی حیثیت، پہلے والا مقام، پہلے والی صورتحال بدل کر کچھ نئی صورتحال میں وہ چلی جاتی۔ یہ وہ خدا ہے جو تبدیلی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاری کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بادشاہ کا ملازم تھا، جو بہت اثر و رسوخ والا شخص تھا، جب اس نے سنا کہ خداوند اس شہر میں کنائے گلیل میں موجود ہے، اور یہ سن کر
کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا، اس کے پاس آیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔ سب کہیں چل کر، اچھی بات میں کہیے چل کر۔ اس نے درخواست کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، اور یہ درخواست اوریجنل جو اس کی ریکویسٹ ہے خداوند کے پاس آتی، اس نے سن رکھا ہے کہ خداوند تو پانی کو بدل کر اس کی نیچر کو، اس کی فطرت کو بدل کر میں اس کی صورتحال کو، اس کی شکل کو لانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ خداوند ہے، یہ وہ آقا ہے، یہ وہ ربی ہے جو میرے بیٹے کے لیے بھی اپنے ایک بڑے معجزہ کو کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ یہاں پر لفظ معجزہ نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ جب تک تم نشان کو نہ دیکھو، عجیب کاموں کو نہ دیکھو، اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے۔ نشان میں اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ سب کے معجزہ۔ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور جب میں کوئی لفظ کہوں کہ رپیٹ کریں تو آپ نے میرے پیچھے کہنا ہے۔ جتنے لوگ چینل پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا جو کچھ کہا جائے کہ رپیٹ کریں، آپ نے رپیٹ کرنا ہے، سب اونچی آواز میں کہیں معجزہ۔ لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نشان استعمال ہوا ہے۔ نشان، دونوں میں کیا فرق ہے؟ معجزہ کبھی کبھی ہونے کا نام ہے، یعنی جو ایسی چیز جو مخلوق الفطرت طریقہ سے ہو، اور وہ سم ٹائمز ہو، کبھی ہو جائے، بعض اوقات ہو، اس کو کہتے ہیں دیکھو میریکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ یہ تو ایک میریکل ہے، اس کے لیے تو ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے، یہ تو اچانک سے ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اکثر ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یہ تو ایک بڑا معجزہ ہو گیا کہ یہ کام ہوا۔ معجزہ کبھی کبھی ہونے کا نام ہے، لیکن ونڈرز اینڈ سائنس یعنی عجیب کام اور نشانات یہ روزانہ ہونے کا نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بھی معجزہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو وہ خداوند ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معجزات کو نہیں، کبھی وہ بڑے کاموں کو کرنے والا خدا نہیں ہے، بلکہ اس نے چلتے پھرتے نشانات کو اور عجیب کاموں کو جاری کیا۔ وہ معجزات کو نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ یہ تو وہ خداوند ہے جس کا طرز عمل ہی، جس کا لائف سٹائل ہی نشانات اور معجزات اور قدرت کو اور عجیب کاموں کو اور اپنے مسا کو جاری کرنا تھا۔ ہاللیلویہ! اس لیے غور سے اس بات کو سمجھے، مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ پادری آشر نے نئی تعلیم شروع کر دی کہ یسوع نے کوئی معجزہ نہیں کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معجزے سے مراد اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو اصل میں خداوند یسوع مسیح نے صحیح طور پر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ نشانات اور عجیب کام ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ونڈرز اینڈ سائنس۔ وہ سائنس اس نے شو کیے ہیں، اس نے نشانات دکھائے ہیں، اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا دنیا میں ایک کلمے کی صورت میں مجسم ہو کر آیا ہے۔ جو کوئی اس کے پاس آتا، جو کوئی اس کے کلام کو رسیو کر لیتا، جو کوئی اس پر ایمان لے کر آتا، اس کے لیے نشانات اور معجزات کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہو جاتا تھا۔ ہاللیلویہ! معجزات ہو سکتا ہے کہ پاسٹرز اور خدام کے وسیلہ سے ہوتے ہوں، لیکن یہ تو وہ خداوند ہے کہ جس کا چلنا پھرنا ہی نشانات کو ظاہر کرنا تھا۔ ہاللیلویہ! چونکہ ممکن ہے کہ پاسٹرز کے وسیلہ سے ظاہر ہے کہ خداوند نے کے بدن کو استعمال کرنا ہے، کہ ایک جسم، ایک جان کو استعمال کرنا ہے، لیکن جس دور کی میں بات کرتا ہوں وہاں پر خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر ایک زمینی خدمت کو پورا کرنے کے لیے خود وہاں پر موجود تھے۔ اور آج ہم انسان ہوتے ہوئے جب بہت سارے نشانات کو، بہت سارے
जो अजीब काम है उनको नहीं देखते, तो कम से कम हम मौजज़ात को देखते हैं जो शायद 1 महीने बाद, 1 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद होता है, लेकिन वो भी हमारे खुदावन की कुदरत से ही मुमकिन होता है। हालेलुया। इसलिए उस शख्स ने आकर कहा कि खुदावन चल कर मेरे साथ मेरे बेटे के लिए जो कि बीमार है उसको शिफा बख्शे। यीशु ने कहा कि बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा क्या खुदावन मेरे बेटे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा कि तेरा बेटा जीता है। He was very hurry, he was in a hurried situation, काफी वो जल्दबाजी में था, वो सिचुएशन से वाकिफ था। क्या हम अपने सूरत हाल से वाकिफ हैं? क्या जब हम खुदावन के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि खुदावन इससे पहले कि फलां काम हो जाए आप मेरी मदद के लिए आ जाएं? क्या हम खुदावन के बारे में सुनकर उसके पास जल्दी से पहुंच जाते हैं कि जब उसने सुना कि खुदावन वहां पर मौजूद है, क्या हम उसके बारे में सुनकर उसके कदमों में आते हैं? और जब खुदावन ने ये कहा कि तुम निशानात को और अजीब कामों को देखना चाहते हो, तो उसने बड़ी दरखास्त करते हुए उससे भी ज्यादा एक पूरे ईमान के साथ कहा कि खुदावन इससे पहले कि मेरा बच्चा मेरा बेटा मर जाए आप मेरे घर में चले। खुदावन ने उसके ईमान को देखा और उसे कहा कि जा तेरा बेटा जीता है। आज के दिन जिस थॉट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये कि हमारा खुदावन नाव का खुदा है, आज का खुदा है, अब का खुदा है। हमारा प्लान चंद घंटों के बाद का होता है। हमारा ओरिजिनल प्लान ये हो सकता है कि ये काम कल हो जाए, ये काम 2 दिनों के बाद हो, ये काम 3 दिनों के बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए। वो खुदावन को अपना मंसूबा दे रहा है। हम खुदावन के पास आते हैं अपने मंसूबे लेकर, और लेकिन खुदावन जो है वो अपने प्लान्स के साथ चलता है। हम खुदावन को घड़ी नहीं दिखा सकते, हम अपना शेड्यूल बनाकर नहीं दिखा सकते कि खुदावन आपने इसके अंदर फिट होना है। ये वो खुदावन है जो इब्तिदा से और इंतहा से मौजूद है। ये वो खुदा है जो इब्तिदा में भी था और आज भी है और हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। ये अब्दियत में मौजूद है, ये हमारे वक्त में और हमारी स्पेस के अंदर उसने अपने आप को नहीं रखा। वो हमारे टाइम का गुलाम नहीं है, हमारे स्केड्यूल के मुताबिक वो नहीं चलता। उस शख्स ने कहा कि खुदावन चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्शिए। खुदावन ने कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे घर में पहुंचूं और ये जो वक्त तुम मुझे कहते हो कि मैं कई घंटों तक चल के तुम्हारे घर में जाऊं, वो लड़का जिसकी दरखास्त लेकर तुम आए हो वो हालते बुखार में है, वो उस वक्त उस तकलीफ का सामना करता है। ए बाप, ए लड़के के बाप, तुम ये मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि चंद और घंटे गुजर जाए ताकि ये लड़का उसी हालत में रहे, लेकिन तुम मुझ पर ईमान तो लाए हो, लेकिन मैं तुम्हें ईमान की अगली बराज पर लेकर जाता हूँ, अगले लेवल पर लेकर जाता हूँ। शायद तुम ये ख्याल रखते हो कि मैं जाकर उस लड़के को शिफा बख्शूंगा, लेकिन ये वो है जिसने कायनात को खल्क किया है। अगर वो अपने कलाम को फरमा ही दे तो बड़े बड़े निशानात और अजीब काम हो जाते हैं। अगर तुमने अजीब काम को देखना है, अगर तुमने निशान को देखना है, तो अपने प्लान के साथ मत आओ। तुमने मेरे आगे दरखास्त रखी है, लेकिन ये तो बादशाहों का बादशाह है, तुम बादशाह के मुलाजिम हो, लेकिन ये कायनात को बनाने वाला है। जब ये अपने कलाम को जारी कर देता है तो फिर बड़े बड़े पहाड़ भी सिरक जाते हैं। अगर तुम कलाम को जारी कर दोगे तो फिर बड़े बड़े जो मौजज़ात है वो भी वकूफ़ पज़ीर होते हैं। उसने उससे कहा कि जा तेरा बेटा जीता है। उसने खुदावन के कलाम के मुताबिक उस पर ईमान रखा। क्या आज हम उसके कलाम के मुताबिक ईमान रखते हैं? क्या आज हम सिर्फ उसके लिए जोश और जज्बा रखते हैं या फिर हकीकी ईमान को रखते हैं? कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने घर में गया और उसके नौकर उसको रास्ते में मिलते हैं, उससे वो कहते हैं कि तेरा बच्चा क्या है? तेरा बच्चा क्या है? उसने जब ये सुना तो फिर इस बात की तस्दीक करता है। बाज लोग ईमान लाने के मामले में काफी मुश्किलात का सामना करते हैं। वो कहते हैं ये स्लैनिंग क्या होती है, ये मौजज़ा क्या होता है, ये बहुत सारे सवालात वो करते हैं। खुदावन के कलाम पर ईमान तो रखा, लेकिन फिर भी हालत सफर में है। अभी भी ईमान की उस मराज पर पहुंचने में उसको वक्त लगेगा। जब वो
अपने मुलाजिम से पूछता है कि मेरा बच्चा कब शिफा पाया। उसने कहा 7वें घंटे के वक्त जब हमने देखा तो उसने शिफा पाई। उसने अपने जहन में ख्याल किया और उसने कहा यस, ये वही टाइम था जब आका के मुंह से ये कलाम जारी हुआ। जैसे ही उसके मुंह से ये कलाम जारी हुआ, मैं तो ये प्लानिंग करता था कि उसको साथ लेकर जाऊं और वो वक्त भी लगे और उन घंटों में भी मेरा बच्चा बीमार रहे। लेकिन जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं, वो आपकी बीमारियों को, वो आपकी मुश्किलात को, वो आपकी सूरत हाल को उसी वक्त बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। और उसने कहा तेरा बच्चा जीता है, और उसी वक्त उस लड़के ने अपनी बीमारी से शिफा पाई। हालेलुया। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसको हम कहते हैं नाउ फेथ, नाउ फेथ, नाउ गॉड। अब का फिर का नहीं, जब तू तब फिर ये लफ्ज नहीं, बल्कि अब और इसी वक्त जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। आज के दिन मेरा खुदावन आपसे फरमाता है कि जा तेरे ईमान के मुताबिक तुझको शिफा मिल गई। अगर आंखों की बिनाई की प्रॉब्लम है, वो आंखों की बिनाई लौट आई है। अगर तुझे कैंसर है, यीशु के नाम में वो कैंसर हलाक हो चुका है, उसको नेस्त कर दिया गया है। अगर कोई और बीमारी है, बेरोजगारी है, या फिर बेऔलादी है, भांजपन है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ, उस कलाम को आपकी जिंदगी के लिए जारी कर देता हूँ और तमाम तर बीमारियां, हर एक किस्म की परेशानी यीशु के नाम में अलग हो जाए। हालेलुया। ये वो खुदावन है जो नाम का खुदावन है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारे हालात को, हमारी सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है। एक शख्स खुदावन के साथ मकामी सलीब पर मौजूद था और दो लोग थे, दो डाकू थे। एक कहता है अगर तू इतना ही रास्तबाज है तो अपने आप को बचा ले। ये दो लोगों के जहनों को जाहिर करता है। आज भी लोग कहते हैं कि फलां को देखो, फलां को देखो, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने किए की सजा पा रहे हैं। वो जजमेंटल होते हैं, हमेशा लोगों को जज करते हैं, अपनी सूरत हाल पर नहीं, अपनी जिंदगी पर नहीं, अपने हालात पर नहीं, अपने बच्चे की सूरत हाल पर नहीं, बल्कि वो लोगों को देखने पर टाइम स्पेंड करते हैं। बादशाह अपने घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए अपने महल के चंद हिस्सों में बड़े बड़े बाग बनाया करते थे और उन बागात या बाग में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। उस बाग में वही जा सकता था जिसके ऊपर बादशाह की नजरें करम हो जाए और जिसको बादशाह महबूब समझे, जिससे बादशाह प्यार करे। बादशाह उस बाग में अपनी महबूबा को लेकर जाया करता था, अपनी मलका को, अपनी प्यारी को, अपनी बीवी को, जिसके ऊपर उसकी नजरें करम हो जाए, जिसके ऊपर उसकी फेवर हो जाए। उस बादशाह उस जगह पर बादशाह उस शख्स का हाथ पकड़ के बादशाह महल की उस मखसूस जगह जिसको हम बाग कहते हैं वहां सैर करवाया करता है। हाथ पकड़ के सैर करवाता, खूबसूरत तरीन बाग। जब यहाँ पर इस हवाले में हम मखसूस मकाम पर जहाँ पर खुदा ने कहा तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा, ये बिल्कुल वही मंजर कशी थी कि तुम कहते हो कि जब तुम अपनी बादशाही में आओ तो फिर मैं तुम्हें याद करूं, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के आज ही जन्नत की फरदौस की सैर करवाने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ जन्नत की सैर करेगा। ये वो खुदावन है जो कायनात का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है, जिसने हर एक चीज को बनाया है। उसने रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में घूमेगा फिरेगा, क्योंकि मैं कायनात का मालिक और आका हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस खुदावन के मानने वाले हैं जो हमें बाग नहीं दिखाता, हरे हरे बाग नहीं दिखाता। एक मुहावरा है कि हमें शब्द बाग
वो जिंदगी का बाग तो दिखाता है लेकिन हरे हरे बाग नहीं दिखाता। वो हमें लालच नहीं देता। कलाम खुदा में लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने क्या उठाए, ऊंची आवाज में कलीसिया क्या उठाए, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब को उठाने का मतलब यह है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मेरे शागिर्द होना चाहते हो, अगर तुम मुझ पर ईमान लाना चाहते हो, अगर इन कांटों पे चल के आओ मेरे महबूब, फिर मैं जानूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। उसने हमें कोई सब्ज बाग नहीं दिखाया, उसने हमें जिंदगी की राहें बताई हैं और ये कहा कि अगर तुम में से कोई मुझ पर ईमान लेकर आए, अपने सलीब को उठाए, अपनी तमाम खुदी का इनकार करे और मरने तक के लिए तैयार हो जाए। दूसरे लफ्जों में अगर वो मुझसे इतना प्यार करे कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाए, असल में वो मेरा शागिर्द है, वो मुझ पर ईमान लाने के लायक है। ऐसे लोगों को वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसे लोगों को वो कहता है कि तेरा बच्चा अभी और इसी वक्त जीता है। हालेलुया, क्योंकि वो आर्श का खुदा है, नाउ गॉड है। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि मुस्तकबिल और माजी और ये सारी चीजें उसके हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जब उस पर ईमान लेकर आते हैं वो आपके लिए बड़ी कुदरत के साथ उसी वक्त आपके हालात को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जिसके अख्तियार में सब कुछ है। उसने हमें खल्क किया है, उसने हमें बनाया है। अगर एप्पल का फोन खराब हो जाए तो हम एप्पल की कंपनी के पास जाते हैं। अगर सैमसंग का फोन खराब हो जाए तो हम सैमसंग का जो कस्टमर केयर है उनके पास जाते हैं। जिसने जिस चीज को बनाया होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर क्या है। अगर फ्रिज खराब हो जाए तो हम उसी कंपनी के पास जाते हैं। जब इंसान की जिंदगी का मामला है और उसके बातिन और उसके ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मामला है तो जरूर है कि हम उसी के पास जाए जिसने उसको खल्क किया है। हालेलुया, उस लड़के का बाप जिसने उसको बनाया उसके पास गया। वो शख्स जो शरीर पर मौजूद था वो उसी से कहता है कि मेरी जिंदगी को बदल दे और जब तो बादशाह में मुझे याद कर। तो खुदावन ने उसके लिए जन्नत के रास्तों को खोल दिया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। उसको भेजा नहीं कि तुम आज ही जन्नत में जाओगे, बल्कि उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ। ये कितनी खुशी की बात है कि तू अकेला वहां पर नहीं है, बल्कि मेरे लिए जन्नत ये, मेरे लिए फरदौस ये कि मेरा खुदावन मेरे हाथ को पकड़कर मेरे साथ साथ चलेगा और कहेगा कि तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। बाहों में और हाथों में हाथ डालकर तुझे मैं कायनात की और जन्नत की सैर करवाऊंगा। हालेलुया, कौन कौन है जो फरदौस में जाना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाएं जो फरदौस में जाना चाहते हैं। जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे कलाम पर भी अमल, जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे कलाम पर भी अमल। जो कोई जन्नत और फरदौस में जाना चाहता है जरूर है कि वो खुदावन से मोहब्बत करे और उसके कलाम पर अमल करे, तब जाकर हम खुदावन की जो अबदी जिंदगी उसने हमारे लिए रखी है उसमें शामिल हो सकते हैं। बाइबल के मुताबिक फरदौस सिर्फ इसी चीज का नाम है कि जहां पर हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। यही फरदौस है, यही जन्नत है। इसी चीज को हम जन्नत कहते हैं बाइबल के मुताबिक। खुदावन ने हमें किसी चीज के लिए लालच नहीं दिया है जन्नत के लिए कि वहां पर दूध होगा, वहां पर नहरें होंगी, वहां पर दूध की नहरें होंगी, वहां पर दूध का दरिया होगा, वहां पर फलां चीज होगी, वहां पर ये चीज होगी, वहां पर दिस होगा, वहां पर दैट होगा। कोई ऐसा लालच हमें नहीं दिया गया। ना ये बताया गया कि वहां पर सर्दी हो, ना ये बताया गया कि वहां पर गर्मी हो। क्योंकि अगर ये कहा जाता कि वहां पर सर्दी है तो वो लोग जो नॉर्थ एरियाज में रहते हैं दुनिया के
वहां तो ऑलरेडी सर्दी हो, कहते हैं जन्नत में भी जाकर सर्दी है, यहाँ पर भी सर्दी। अगर ये कहा जाता कि वहां पर गर्मी है तो कराची के लोग कहते हैं ऊपर भी गर्मी, यहाँ पर भी गर्मी। कोई सूरत हाल नहीं बताई, एक ही चीज बताई गई है, यहाँ पर मेरा महबूब, वहां पर उसकी महबूबा, जहाँ पर मैं हूँ वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं अपने बाप के पास जाता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे मकान हैं, और मकान मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि हम आफ़ताबे सदाकत के नूर में चले फिरेंगे, जहाँ पर मेरा खुदा होगा वहां पर मैं हूँगा। जब मेरा खुदा वहां पर मौजूद है, ना मुझे सूरज चाहिए, ना मुझे चांद चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे कोई और चीज चाहिए, सिर्फ मुझे अपने खुदा के चेहरे के दीदार को करना है। हालेलुया। जब आपका खुदा आपके साथ है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम कामिल हो जाएंगे। ना बदन की ख्वाहिशात, ना भूख, ना प्यास, ना सूरज की रोशनी, ना चांद की रोशनी, क्योंकि हम अपने खुदावन के सामने होंगे और उसी की परस्तिश करेंगे, उसी की सताइश करेंगे। हम उस मकाम पर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईमान रखना है, और ये ईमान रखना है कि ये वो खुदा है जो हमारे लिए आज ही सब कुछ मुमकिन करने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस बादशाह के मुलाजिम की तरह का ईमान रखते हैं कि खुदावन तो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन कर सकता है। बेसिक फेथ को वो लेकर आया और खुदावन ने उसको और इंक्रीज कर दिया और बढ़ा दिया है। खुदावन ने उसके हाथ को पकड़कर गोया अगले लेवल पर लेकर गया। खुदावन ने उसको और मजीद कलाम में और ईमान में गहरे में लेकर गया है। कम से कम हमें पहले स्टेप पर तो होना चाहिए, कम से कम हम उसके पास तो आए और कहें कि खुदावन मेरी जिंदगी में इस बड़े काम को कर दे। हालेलुया। हम सब जल्दी से खड़े हो जाएं और हम खुदावन को पुकारेंगे, खुदावन के आगे अपने सूरत हाल को रखेंगे। वो शख्स दूर का सफर करके ये सुन करके कि खुदावन गलील में वापस आ चुके हैं और अपनी दरखास्त लेकर आया, क्या आप आज के सुबह खुदावन के सामने अपनी दरखास्त को लेकर आए हैं? क्या आज के सुबह आप अपनी जिंदगी को उसके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके बच्चे, आपका खानदान, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बीवी, आपका शौहर, किसी की भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसे खुदावन के आगे रखिए, क्योंकि वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। वो अपने लोगों के दरमियान चल फिर रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुदावन को पुकारना शुरू करें। जितने लोग शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी में खुदावन की फेवर को चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक किस्म की बीमारी, हर एक किस्म की प्रॉब्लम, जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन के सामने हैं, मैं इनके बदनों से शैतान के सारे मंसूबों को नेस्त होने का हुक्म देता हूँ। सारी बीमारियां यीशु के नाम में अलग हो जाएं, मुकम्मल शिफा यीशु के नाम में जारी हो जाए और खुदा गवाही ठहर जाए। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।